Good morning, students. This is your next chapter, D and A block element. Chapter number 8. हमारा चैप्टर नंबर 7 बहुत बड़ा चैप्टर है भी और काफ़ी लंबा चला भी, कुछ क्लासेस के डिस्टर्बेंसेस हुई एज वी नो. But now we are on chapter number 8, D and F block elements, and in this lecture 1 we'll discuss physical properties of D and F block element. Basically in this portion we discuss about physical properties of D block elements, right? Now here we are going to discuss about properties of those elements, right? These are D and F block elements. You can see three important series of D block element. There is fourth one also, but it is not so much important. But this series is very important. These three. The first series is known as 3D series because electron enter in 3D. The second series from 39 to 48 is termed as 4D series because electron enter in 4D. And next series 57 to 80 is 5D series, and in which electron enter into 5D. And the next one, that will be 6D series, and electron enter into 6D. Two important series also given here from 58 to 71. They comes after lanthanum, that's why also known as lanthanoids. And from thorium to lawrencium, they comes after actinium, and that's why they are known as actinoids, right? So lanthanoids and actinoids also given in last two series, and above three series are D series. Important element of D series are here. Sometimes D series also termed as transition elements, but not at all, because for being a transition element, it is necessary that element must have an unpaired electron either in their atomic state or in their ionic state, but it must have an unpaired electron. But group 30 elements, last group elements of a D block, zinc, cadmium and mercury, they are not considered as transition element because they never have an unpaired electron in their outer shell, right? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, Hg2 देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर हम मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो दैट विल बी Hg+1. और अगर ऐसा होता है Hg+1 तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. बट रिमेंबर इट, इन Hg2 there is Hg.Hg2+, there's no Hg1+. That's why the compounds of it has been written as like Hg2Cl2 right? So remember, these zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements. Transition elements नेम मैंने यहाँ दिया हुआ है. यू कैन सी स्कैंडियम टू जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर में देखने को मिलता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड डी सबशेल, राइट. सेकेंड डी सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है. आप देख सकते हैं फ्रॉम नायोबियम to silver,
either one electron in d subshell or no electron, either one electron in s subshell or no electron in s subshell. There is a confusion about niobium. Here might be 0. There is some confusion regarding of it. Otherwise, in all other cases, here might be 0, so here is 5. In all other cases, it is true, no issue. So niobium to silver all either have 1 electron or 0 electron, but that second series, d orbital must have 5 electrons, right? In technetium, in case of technetium, there is some confusion. In some books this is given as 5-2. In many books it is given. In many books given it is 0-5, right? So जो आप ध्यान रख सकते हैं उसका यूज कीजिए. तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ 5 हो सकता है, 0 तो वो बेटर है, ठीक है. आप याद रख सकते हैं कि यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 5 तो वो याद बेटर है. फिर यहाँ जो है वो ये 1-1 रह सकते हैं, यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आप देखें तो एबनॉर्मेलिटी नायोबियम से लेकर सिल्वर तक देखने को मिलती है. बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा. ऐसी 3D सीरीज अगर आप थर्ड सीरीज देखें दैट विल बी 5D सीरीज. इट इज 4D सीरीज, इट इज 5D सीरीज. अगर 5D सीरीज में देखें तो एबनॉर्मेलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, प्लैटिनम और गोल्ड में ही देखने को मिलती है. ऐसा इसलिए भी होता है कि जो 4D सीरीज है यहाँ पर भी काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. जो है 5s और 4D की एनर्जी काफ़ी क्लोज होती है. फिर जब आप 5D सीरीज में जाते हैं तो 6s और 5D की सीरीज की एनर्जी भी काफ़ी क्लोज होती है. तो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे जा सकता है. इसलिए काफ़ी जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर उसे अपने अपने हिसाब से बताते हैं. बट हम यूज़ करेंगे जो हमारे NCERTs के डेटा है. बट ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है. आप आगे देखिए 4th सीरीज जो कि 6D सीरीज है, वहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है जिसमें ऐसा देखने को मिल रहा है, रेगोरियम, राइट. तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आई कैन से बेटर वर्ड फॉर ऑल ऑफ देम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट. नाम जरूर आप देख सकते हैं, अगर किसी का पता नहीं है तो ध्यान रखें. एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डोवेरिनियम, दिस इज आई थिंक सार्गेजियम, ऐसा है कुछ. बोरियम, हैस्नियम, दिस इज माइटी मेंडेलेवियम बट इट इज गिवन समथिंग एल्स. डिस्प्रोसियम, राइगेरियम और कैलिफोर्नियम. इट्स नॉट कैलिफोर्नियम, इट इज समथिंग एल्स, राइट. कुछ के नेम जो है जैसे 100 के बाद के लिए जो नेम दिए गए हैं वो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, राइट. नाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखें तो स्कैंडियम और टाइटेनियम HCP मेनली शो करते हैं. कुछ स्टेजेस में BCC हो सकता है, पर जनरली HCP मेनली इनमें देखने को मिलता है. इसके बाद वैनेडियम और क्रोमियम BCC फॉर्म में देखने को मिलते हैं. उसके बाद अगर हम देखें लास्ट के 3 ग्रुप कोबाल्ट, निकेल और कॉपर CCP या FCC लैटिस शो करते हैं. यानी इनमें कोई क्लियर फर्स्ट 2 ग्रुप, नेक्स्ट 2 ग्रुप और उसके बाद नेक्स्ट 2 ग्रुप, नेक्स्ट 3 ग्रुप, मतलब लास्ट के बीच में जो मैग्नीज और आयरन वाले केसेस हैं इसमें HCP डाउन द ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं. Fe का BCC हो सकता है और मैग्नीज जो है वो BCC पर CCP दोनों शो करता है. तो ऐसा हम एक ट्रिकी तरीके से थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं. बाकी बहुत ज़्यादा इस पर मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं और ये सारे मेटल्स हैं और सारे मेटल्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. जिंक में HCP, कैडमियम HCP और मर्क्यूरी का जो है वो लिक्विड स्टेज में जनरली रूम टेम्परेचर मिलता है. तो एक जनरल स्ट्रक्चर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट. तो फर्स्ट 2 ग्रुप आसानी से याद रख सकते हैं HCP, नेक्स्ट 2 ग्रुप आसानी से याद रख सकते हैं BCC, और फ्रॉम कोबाल्ट टू कॉपर वाले जो ग्रुप्स हैं दे आर CCP, दे शो CCP. बाकी में मैग्नीज और आयरन में लास्ट 2 जो है वो लास्ट जो अपने को 4 एलिमेंट्स मिलते हैं इन ग्रुप्स में वो HCP शो करते हैं, और आयरन जो है वो BCC है,
और मैग्नीज जो है वो BCC और CCP दोनों शो करता है। जिंक और जो कैडमियम है वो HCP शो करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है, काफ़ी एलिमेंट्स HCP शो करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम ध्यान रखें तो एक हमारी परमानेंट मेमोरी में अगर थोड़ा सा स्टोर हो जाए तो आसानी से स्टोर हो सकता है, राइट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम पता है, जो हम बचपन से जानते थे, व्हाट आर मेटल्स। फ्रॉम चाइल्डहुड वी नो मेटल एज हैविंग good conductivity of toward heat and electricity, ductile, malleable, right, tensile strength, lustrous. These all properties we can see in these elements. Generally बड़े होकर हमें पता चला कि अरे मेटल्स तो सोडियम भी होता है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, और भी मेटल्स हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम केमिस्ट्री में जब मेटल की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री में मेटल्स की बात हम की रिएक्टिविटी के लिए करते हैं। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज जो हम जानते हैं आज तक मेटल को, या जो हमने बचपन में सुना हुआ है, वो सारे जो हैं वो प्रॉपर्टीज इन्हीं एलिमेंट्स की देखने को मिलती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही हम बात कर रहे हैं, और अब हम कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इंडिविजुअली अपन बात करते हैं, चलिए। और मैं इस टेबल का यूज़ करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए मैंने इस टेबल को रखा हुआ है। लेट वी डिस्कस अबाउट इंडिविजुअली सम प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग मेटल, लो वॉलेटिलिटी होती है, एंड दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। Generally, melting points or boiling points depends on the force of interaction or interparticle force of attraction, and number of the force of attraction increase as the number of unpaired electrons increase. But somehow in cases of manganese and technetium, due to some structural interpretation, their melting point decrease. Otherwise, as number of unpaired electron increase, melting point increase, and as number of unpaired electron decrease, melting point decrease. You can see silver, copper, gold, and zinc, cadmium, mercury also have very less melting point. So they come after these elements in each period, each d block series, right? You can see from स्कैंडियम टू टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होता है। थोड़ा हम इसे दिमाग में रख सकते हैं कि हम केवल इतना दिमाग में रख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बाकी सबके लिए बढ़ता है जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं, और फिर कम होते जाता है, राइट। ये हमारे दिमाग में हो सकता है। मैग्नीज और टेक्नीशियम में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो वी कैन ईजिली, अगर हमें ग्राफ में मिलता है, हमसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा ग्राफ हो सकता है इसके लिए, तो वी कैन ईजिली ड्रॉ दैट ग्राफ, ईजिली आइडेंटिफाई दैट ग्राफ कि किस प्रॉपर्टी के लिए वो ग्राफ है, राइट। आप मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज जो है, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। अगर आप इसमें मेल्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, वैल्यूज़ मेंशन नहीं है, मुझे लगा था मेंशन होगी, बट कोई इशू नहीं है। बट इतना जरूर याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट्स जो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है और उसके बाद उसी रेशियो में कम होता जाता है, राइट। थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कॉमन मानी जाती है, इसलिए वहाँ पर जो स्लोप है वो काफ़ी कम है। बाकी केसेस में उतना कॉमन नहीं है, इसलिए स्लोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता जाता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा याद रख सकते हैं, ये केवल एनालिसिस पर्पस के लिए, राइट। नाउ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जब हम बात करते हैं मेटल्स की, जब हम किसी गैस या लिक्विड की बात कर रहे होते हैं तो हम उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो विल डिस्कस और विल स्पीक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दैट what is enthalpy of atomization? The amount of energy required to convert metal into their solid metal into their atoms or in gaseous form we can say, यानी solid को सीधे से gaseous form में, sublimation like. और again it is depends on that bonding, then force of attraction, metallic bonding, and again you can see as number of unpaired electron increase, it is increase. But due to some structural interpretation, in some cases, in case of manganese, in case of technetium,
देयर इज सम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज वी कैन सी। देखिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है फ्रॉम 326, 473, 515। फिर क्रोमियम और मैग्नीज के लिए ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थोड़ा कम होता है, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर से ये बढ़ता है। आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज होता है और उसके बाद कम होते जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 सीरीज में ही आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इट इज़ अबाउट क्रोमियम, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। फॉर अदर्स देयर इज नो इशू, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज it increase, but in case of chromium, manganese, and this is due to structure only, they have some different crystalline forms, इसलिए इनमें थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है। बाकी उसके बहुत ज़्यादा इशू नहीं, बस हम याद रखें कि किस तरीके से ऑर्डर होता है, तो हम ऐसा ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं उनका, राइट। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट इज, और आप वैल्यूज देख सकते हैं, यहाँ वैल्यूज हैं तो उससे भी आप आसानी से उसे कंपेयर, यू कैन सी 126 how small it is, right? So graph is based on it only, right? One more important thing I have, that is variation in atomic and ionic size of transition element. This is again very very important. One main thing is this, all electrons enter in D series during this whole transition elements. अगर एक ही चार्ज है तो साइज ऑलमोस्ट डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज नो इशू, क्योंकि हमेशा जनरली +1 और +2 के केसेस में जब भी होता है इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर करता है, एस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर डी से निकलते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर सेम है तो एज न्यूक्लियर, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, दैट आयनिक रेडियस डिक्रीजेस along the period. One more important thing is this, as moving down the group in D block, right, the radius of obviously 4D series members is higher than the larger than 3D series member, there is no issue, but here one important condition observed, that is metallic radius of 5D series elements is almost equal to 4D series elements. You can see here, this is there is no मेरे पास अभी सीरीज उसका डेटा नहीं है, बट आप उसे ध्यान रख सकते हैं कि 4D सीरीज मेंबर्स का जो एटॉमिक रेडियस होता है, कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस होता है, 5D सीरीज के मेंबर्स के ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सीरीज मेंबर्स, 5D सबसेल्स, 4 electrons filled in 4f subshell, and hence before 5D 4D has been filled, and due to poor shielding of f subshell, strong nuclear charge act over 5D series members, and that's why their radius decrease. This effect is known as lanthanide contraction. Generally this effect is also we'll discuss in lanthanoids, because जैसे हम देख रहे हैं कि 5B सीरीज मेंबर पर इतना इफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जहां इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे 4f, तो 4f ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी साइज, उनका साइज भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड all 14 members of 4f series we will discuss have almost same size, almost, there's a difference between 1 picometer or 2 picometer like. So this contraction is very significant in case of lanthanoids also. There is a difference in 5D series members, radius difference in 5D series members, but they also contract and have size almost equal to 4D series members, right? And इसी series members के बाद आगे जो है वो P block में
6th ग्रुप एलिमेंट्स भरे जाते हैं और जिनमें आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा है। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज 4f के भरने के कारण से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 4f की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, राइट। केवल यू कैन सी जर्कोनियम 160 पिकोमीटर एंड हैफनियम 160 picometer and hafnium 159 picometer. I said almost similar. In some cases it is smaller than that. Hafnium 6 5d series member है, zirconium 4d series member है. You can see this is 4d 5d. zirconium इस 4d सीरीज मेंबर, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्मॉल छोटा हो जाता है साइज। ये बात अलग है कि आगे के केसेस में जो है वो इतना डिफरेंस आगे केसेस में छोटा तो नहीं होता, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं होता, राइट। तो रीजन फॉर एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट इम्परफेक्ट सेल शील्डिंग बाय एफ सब शेल, राइट। आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे वेरिएशन आता है। आप देख सकते हैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम। एटॉमिक रेडियस केवल आपको एक सीरीज के लिए दिया हुआ है। जनरली बिकॉज लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ऑब्वियसली, तो जनरल ये कहते हैं कि साइज छोटा होते जाता है, राइट। जनरल अगर हम बात करते हैं तो साइज कैसा होता जाता है, जनरली हम देखें थोड़ा छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, बट मैग्नीज के केस में थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शील्डिंग रिलेटिवली कम हो जाता है, शील्डिंग रिलेटिवली बढ़ जाता है, सारे शेल्स में सिमेट्रिक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे और लास्ट में फिर से 137, क्योंकि यहाँ पर भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कॉपर में भी काफ़ी सिमेट्रिक होता है, तो स्टार्ट में बस थोड़ा सा साइज इंक्रीज होता है। ये जनरली इसलिए होता है कि स्पेसिफिकली मैग्नीज और जिंक, क्योंकि इनमें फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल्स देखने को मिलते हैं। जिंक में फुल फिल्ड और मैग्नीज में हाफ फिल्ड, और बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखने को मिलता है, जिसके कारण से शील्डिंग बढ़ता है। जब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्फीयर में आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्फीयर में आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्फीयर में, ये मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि हमें थोड़ा सा और हम बेहतर तरीके से इसे कर पाएं, राइट। तो मैंने किया तो था इसे ट्राई, लेट्स सी। ओके, ओके, बाद में देखेंगे, मैं पता नहीं क्या इशू हो रहा है, अभी उसको अपन और बाद में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस अभी करते हैं। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक स्फीयर हमने लिया हुआ है और एक स्फीयर के चारों तरफ जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो व्हाट वी वुड गेट, क्या इशू आ रहा है, नहीं तो इसमें हो जाता है। आई ट्राइड, विल सी नेवर। सो चार्ज जो होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और चार्ज के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण से आप समझ सकते हैं किसी शेल में अगर चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो रिपल्सन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसके कारण शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, और शील्डिंग ज़्यादा होने के कारण से हमें इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, और इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, और साइज जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज
साइज ऑलमोस्ट कम होते जाता है। लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड वही है, बट लास्ट में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है। यू कैन सी फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम टू वेनेडियम टू क्रोमियम, फिर मैग्नीज का वैसे तो इसमें स्लोप वैसे लिया लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, फिर लास्ट में एक्चुअली इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये आप देखें सारी सीरीज में, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आपकी 4D सीरीज है और 5D सीरीज है वहां पर साइज देखिए ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सीरीज साइज जो है वो छोटा होता जाता है, साइज जो है बराबर होता है, राइट। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम डिस्कस कर रहे थे। हम अगेन एक बार और देखता हूँ कि क्या इशू अगर हो जाता है रिजॉल्व ये इशू, तो हम उसे एक बार इस पर देखेंगे। और ये एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उन चैप्टर्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ पाएंगे, काफ़ी कुछ देख पाएंगे और उन चैप्टर्स में काफ़ी कुछ हमारी बात हो पाएगी, राइट। ये क्या इशू आ रहा है, लेट मी सी, इसमें क्या मैं गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट कलर पिकर, पेन का ऑप्शन क्यों नहीं है। एनीवेज चलिए हम क्लास में जब हम होंगे तब इस पर और कोशिश करेंगे, शायद आप मुझे आइडिया दे पाएँ कि ये कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली मैं इसे इंटरेक्टिव पैड का यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अपन उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बात अलग है कि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते और जिन पार्ट से क्वेश्चंस आते थे स्पेसिफिकली मैं बाद में जिसको लगेगा मैं उसको पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं अभी तक मैं नहीं, आगे वाले पोर्शन में से, ठीक है। सो प्रिपेयर इट एंड रेडी फॉर इट, राइट। विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास पॉजिटिवली पॉसिबली अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा तो टुडे, राइट। थैंक यू।